Good morning, everyone. Good morning, sir. Today I will teach again the chapter Python libraries, and I will teach you today using string modules. You write it string modules, string module. So again I am sharing the screen for you. So screen is shared, and then I'll start Python IDLE. Python IDLE. Okay, this screen is visible. File new. Yes, sir. Okay. So what you have to do for string module, you have to write import string. Okay. Some string functions are inbuilt, but there are many functions. For that, you have to use the string module. So import string first you have to write, and the different modules which are with string are number one, different types of functions. String dot ASCII. String dot ASCII. As I told you, you can write it here also. That's not a problem. So print से आप बच जाते हैं, नहीं तो you can write print also. Import string, and then with string 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 dot. The first function I am teaching you ASCII. ASC देखिए बहुत सारे फंक्शन है, बट जो पार्ट ऑफ सिलेबस है वही मैं पढ़ाऊंगा. ASCII letters. It returns a string. It returns a string containing all the collection of ASCII code. ASCII code. ASCII letters. Okay. That's it. Press enter. What you see here, all the letters A, B, C, D to Z and A, B, C, D to Z, they are displayed here. Okay. ASCII, you know the meaning, American Standard Code for Information Interchange. If you are not aware, write it. American Standard Code for Information Interchange. Next function is string dot ASCII underscore lowercase. String dot ASCII underscore lowercase. So this time it will only display string dot ASCII lower. So it will display only lowercase, not the uppercase. Same way uppercase भी आता है. You write that string dot ASCII uppercase. देखिए ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. हेडर sorry, which file is imported, which module is imported for the above functions, given below functions, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं. इसलिए आपको पता होना चाहिए. String dot ASCII uppercase. तो अपने से डेफिनेशन लिख लो, जैसे लोअर की जगह अपर कर दो. Uppercase. It returns a string containing all the uppercase. Next, string dot
string dot ASC string dot digits ASCII digits है या सिर्फ digits है? digits. So you know that all the character in Python contains the special characters, the comma, semicolon, punctuators. Also it contains the alphabets, digits, etc. So plus all the digits 0 to 9 are displayed. So definition में वही लिखेंगे, it returns a string containing all the digits. Okay. Next is your string dot hex digits. String dot hex digits. So 0 to 9 and A, B, C, D, E, F. Okay. Next, it returns a string containing all the hexadecimal digits characters. Next, string dot octal oct digits. So 0 to 7. Okay. Next is your string dot punctuation. String dot punctuation. आप बाकी फंक्शन भी ट्राई कर सकते हैं, जो सिलेबस में था वो मैंने करा दिया ना। मुझे एक चीज देखनी है कि क्या ये इस तरह वर्क करता है। स्ट्रिंग डॉट digits एंड हियर पैरामीटर इन्होंने मेंशन बुक में तो नहीं किया है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। That is the problem. str object is not callable here. So सिर्फ बताने के लिए है कि स्ट्रिंग में कौन सी डिजिट्स है, स्ट्रिंग में कौन सा हेक्साडेसिमल है, कौन सा ये है, कौन सा वो है। ओके। अगर हम यहाँ पर वैसे स्ट्रिंग के बिना तो चलेगा नहीं, और तो कुछ चलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये तो फिक्स स्ट्रिंग है, ये इससे भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सो सिर्फ बताने के लिए है कि कौन से क्या है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर कैप वर्ड्स, CAP कैप वर्ड्स। ये अच्छा है, ये आप यूज करिए प्रोग्रामिंग में। कैप वर्ड्स, definition you write, it capitalizes each word of the string, each word of the string। एक्चुअली ये करता क्या है, पहले स्ट्रिंग को अलग अलग स्प्लिट करता है, जैसे स्प्लिट फंक्शन होता है, तो एक कैपिटलाइज के अंदर स्प्लिट भी फंक्शन अवेलेबल है, स्प्लिट करता है, प्लस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है, और उसके बाद फाइनली सारे वर्ड्स को ज्वाइन करता है। समझ में आया? तो आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, इट कैपिटलाइजेस ईच capitalizes first character of each word in a string. It capitalizes first character of each word in a string. So I'll take the example here, string string dot cap cap words, and then I'll take here, suppose I'll take कोटा, राजस्थान, इंडिया, दिल्ली, कुछ भी आप एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करके लिखो, आपकी मर्जी। प्रेस एंटर के, यहाँ पैरामीटर है,
So Kota, Raj, India, Delhi. Each character of the word is, first character of each word is in capital letter. समझ में आ रही बात? ओके, अब इसमें जो सिंटैक्स है वो मैं बता दूं। इसमें सिंटैक्स में ये कहते हैं कि इसका जो सिंटैक्स है, स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड आफ्टर दैट, यहां पर जो भी आप स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, स्ट्रिंग कांस्टेंट और मे बी वेरिएबल आल्सो यू कैन गिव, सो स्ट्रिंग कॉमा एंड देन there is a separator by default is none. You can write also. So see here, if I write this, syntax समझ में आ गया? So I'll write this copy and here I paste. तो कोटा रजिस्टेंस सेपरेटर नन कर दिया, या मैं नहीं भी दूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज नन ओनली। इसका एक और फायदा होता है, नोट इट डाउन समवेयर, इवन देयर इज अ स्पेस इन द बिगिनिंग और देयर इज अ स्पेस एट द एंड, कैप वर्ड्स लिखना था, कैप वर्ड्स नहीं, कैप वर्ड, कॉपी पेस्ट कैप वर्ड्स। अरे स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, कहाँ इंडेंट हो गया? कुछ गड़बड़, स्पेस आ गया, कॉपी पेस्ट। Okay, so that is also truncated. The space is also truncated in the beginning and the end both. Now what have स्पेस को नन से रेफर करते हैं क्या? स्पेस को ट्रंकेट करेगा जब सेपरेटर नन देंगे या हम कुछ नहीं भी देंगे। जस्ट सी हियर, जस्ट सी हियर, स्पेस नहीं हो, नहीं तो इंडेंटेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है। एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस को ट्रंकेट ही करेगा। नाउ सी हियर द इफेक्ट ऑफ दिस। एक मिनट के लिए इसको समझो फिर से। नन की जगह मैं कुछ और करने वाला, कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट, अगेन वो स्पेस वाले चक्कर में हो। Now instead of this I am writing here separator is equals to comma instead of none. Now see the effect. Obviously comma separator is not there, the string is displayed like this only, Kota, Raj, India, Delhi. Now see the next effect of it. Now if I have a string dot caps word, cap words, after that I am taking here Kota space, instead of that I am taking comma Raj comma Delhi. Okay, now the separator is this, separator is equals to comma, that is why this prototype is there. So अब ये वर्क करेगा एंड कोटा, राज और दिल्ली का देखिए फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर हो गया। इवन आई गिव स्पेस हियर, लाइक आई हैव गिवन स्पेस हियर, ओके आई विल टेक दिस ओनली एंड स्पेस दे देंगे इसको। या चलो ना, माउस कॉपी पेस्ट, कॉपी नहीं वाला, कॉपी पेस्ट और यहाँ स्पेस दे देते हैं।
और यहाँ भी स्पेस दे देते हैं एंड प्रेस एंटर की। सो स्पेस भी रिमूव नहीं होगा, बट बिकॉज और कॉमा का जो इफेक्ट आया है, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक स्ट्रिंग माना है। अब इस कॉमा के इमीडिएटली बाद आया आर, इस कॉमा के अगर मान लो मैं यहाँ पे भी स्पेस दे देता तो फिर वो दिक्कत आ जाती। सो होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। जब आप अदर देन स्पेस यूज करते हैं और सेफ इज इक्वल टू नन नहीं यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, तो फिर आपको जो छूट मिल रही थी दैट वाज बाय डिफॉल्ट द स्पेसेस वर ट्रिम्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट बोथ, वो नहीं होगा। और फिर इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे एग्जैक्टली कॉमा के बाद पहला कैरेक्टर स्मॉल लेटर में है। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। I'll go ahead. Yes, sir. Okay. Now this chapter is completed. In this के जो functions वगैरह थे यहाँ तक हो गया। आपको next मैं आ रहा हूँ creating Python libraries. Creating Python libraries में मैंने I have already taught you how to create a module. Okay. Just now I'm stopping the sharing. How to create a module in Python. What is a module? Any of you? What is a module in Python? Any of you please? सर याद इट्स रखा करो। फाइल जिसके रेफरेंस से अपन दूसरे प्रोग्राम्स में उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। Python module is nothing but a Python file only which has number of functions. यही है ना बेटा? यस सर। This Yes, is the sir. definition only. Yeah. Python Yes, sir. module is simply a Python file with extension py. Okay. And second point क्या है? कि it has number of functions. Clear है ना? Yes, sir. Okay. सर अब मैं थोड़ा सा इसको लेके स्क्रीन शेयर कर लूं फिर आपको, and then I'll start making a new program. Now I'm making a function. I'll give, शुरुआत कर रहे हैं, आपको एक मॉड्यूल का बता दिया था ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ पैकेज। ओके, कलेक्शन ऑफ पैकेज इज नोन एज लाइब्रेरी, ये मैंने आपको शायद बता दिया था। तो पैकेज बनाने जा रहे हैं। पैकेज का मतलब कुछ खास नहीं है बेटा। विल मेक अ फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्टोर करेंगे। समझ में आ रही बात? एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, या एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर हो सकता है, दूसरे के अंदर तीसरा हो सकता है, एंड सो ऑन। सो अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ। चाहे तो अपन डायरेक्टली साइट पैकेजेस में ही बना सकते हैं। एक पॉइंट और जो मैं बताना भूल गया कि साइट पैकेजेस में आपका मॉड्यूल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन इंपोर्ट इट। दैट इज द सिंपलेस्ट वे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम मेकिंग हियर फोल्डर सेंट, कोई सेंट नाम का तो नहीं है। अब मैं इसके अंदर कुछ मॉड्यूल स्टोर करूंगा। समझ में आया? जब आप एक पैकेज बनाते हैं जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होंगे, सो यू मस्ट क्रिएट a Python file with the name init. So write this definition, then I'll go ahead. Write this definition, init. The file, और init भी कैसे लिखेंगे ध्यान रखना। the file, इसको सेव करना है, अंडरस्कोर नो स्पेस, init अंडरस्कोर डॉट py, the file underscore init underscore dot py. in is a it indicates, या ऐसा लिखो, the file underscore init underscore dot py in a folder indicates it is an importable
It is an importable Python package. Without it, a folder is not considered a Python package. It is the init file may have some coding, or it may remain empty also. Init basically a file to initialize. Init basically a file to initialize. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप इसे प्रोटोटाइप ही समझ के सब चलो कि जब भी आप एक पैकेज को पाइथन फोल्डर जब आप किसी फोल्डर को पाइथन पैकेज बनाना चाहेंगे जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है या जिसके अंदर बहुत सारे और फोल्डर्स हो, तो उसके लिए आपको हर फोल्डर के साथ एक init.py फाइल स्टोर करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो। तो अब मैं कह रहा हूं कि भले से इसमें init.py में कोडिंग हो सकती है, कुछ इनिशियलाइजेशन के लिए, कुछ हार्डवेयर एग्जीक्यूशंस के लिए, कुछ भी हो सकता है, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर अभी के लिए सेव करना है और इसका नाम देना है अंडरस्कोर init ___ और जिस में आप बना रहे हैं, डेस्कटॉप पे आप हैं, सेंट में, तो उसी फोल्डर में स्टोर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर स्टोर हो गया। गॉट इट? पहला काम खत्म। आप चाहें तो अपना पाइथन बंद कर दीजिए, जो करना है करिए। पाइथन स्टार्ट करके कुछ कोडिंग करना है तो करिए। पहला काम अपन ने कर दिया, आपकी मर्जी। मैं बता रहा हूँ, आप चाहे तो कंटिन्यूएशन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पर न्यू किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन, एक मॉड्यूल बनाया डेफ, सपोज मैंने सम नाम का, एंड आई हैव गिवन हियर a, b। सिंपल से बना रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन हो जाए। रिटर्न a + b। देन आई हैव टेकन अनदर फंक्शन डेफ सब, एंड आल्सो आई हैव टेकन a, b, एंड देन रिटर्न a - b। अगर थोड़ा सा और फंक्शन अच्छा बनाना है तो डेफ फैक्टोरियल बना लो विद an, कुछ भी कर लो। f = 1। अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना। फॉर I in range 1, n + 1, f = f into I and return f। ओके, मेन नहीं बनाना है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब इसका रिटर्न की स्पेलिंग वो फिर एरर आ जाएगा। मैंने तो फिर वो चलेगा नहीं। RETURN, रिटर्न a + b, रिटर्न a - b, रिटर्न f। ओके, नाउ सेव दिस प्रोग्राम, सेव एज। ओके, आप उसी फोल्डर में इसे सेव करेंगे, सेंट में। इसका नाम आप दे दीजिए कैलकुलेशन, कैल्क, py फाइल होगी। ओके, कैल्क, सेव। तो ये कैल्क एक मॉड्यूल है, याद रखिएगा, और सेंट इज द पैकेज नेम। क्लियर है? अब आपने ये सारा काम कर लिया। अब उसके बाद आपको कुछ खास नहीं करना है, जो मैंने पहले बताया था। आप चाहे तो ऑन दैट रशीद वाज आस्किंग, तो सेम है बेटा। आप चाहे तो यहाँ पर बना के फोल्डर कॉपी पेस्ट करो, या डायरेक्टली वहीं जाकर आप एक फोल्डर बना लो, आपकी मर्जी है। तो पाथ आप लोकेशन यहाँ से भी जाके सेट कर सकते हैं सर्च करके, और यू सिंपली गो टू द ऐप डेटा लोकल। मैं पर्पजली इसे समझाता हूँ कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता हो,
कि आप कहाँ पर हैं, पाइथन 3.8 और यहाँ पर पेस्ट, नहीं गलत हो गया, लिब में जाके साइट पैकेजेस एंड देन पेस्ट। ओके, कहीं और पेस्ट कर दिया तो उसका रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। कौन सी फाइल मैंने कॉपी की थी, सेंड की थी या रजा की थी, फिर से कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। शायद रजा पहले से थी, रख लेते हैं, डिलीट करने का मतलब, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? इस सेंड में या इस सेंड Yes. में एक ही बात है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए पहले डेस्कटॉप पे बना दिया था ताकि बात समझ में आ जाए। कैल्क ये मॉड्यूल का नाम है, इसके अंदर फंक्शंस हैं। सो व्हाट आई विल डू एंड हाउ आई विल कॉल दिस फंक्शन, उसके लिए ध्यान रखना। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, फाइल, एक नया प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, एंड देन आई विल राइट इंपोर्ट, व्हाट इज द नेम, सेंड। सेंड के अंदर क्या है, से कैल्क, send dot calc you have to write. Send is the package name and calc is the module name, and then you have can write here print SAINT send dot calc dot some ठीक। Then same way you can write print send dot calc fact, facto क्या नाम था, याद दिलाना, what was the name of the function, फैक्टो। facto, यस सर। सर और वो राउंड ब्रैकेट की जगह डॉट आएगा। राउंड ब्रैकेट की जगह सर कैल्क के बाद। ओके ओके ओके, सो we'll run this program. Now see that इस प्रोग्राम में कहीं कुछ भी कोडिंग नहीं है, ओनली कॉलिंग ऑफ द फंक्शन है। कोडिंग में सिर्फ कॉलिंग ऑफ द फंक्शन है, पूरा प्रोग्राम कुछ भी नहीं बना हुआ है, बट एक्चुअली इसके पीछे प्रोग्राम बन चुका है। सो डेटा इज बेसिकली हिडन, आपका हाइड हो चुका है। सो 121 and 120 the result has come. Do you have any problem? You ask me how to make. init समझ में आई? init is basically initialize का ही मतलब है, मगर हर फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए कंडीशन डाल दी है पाइथन ने कि इट मस्ट हैव इनिशियलाइज, दैट मींस दैट पैकेज इज इनिशियलाइज्ड इन अदर वर्ड्स, दो इट इज हैविंग सम कोडिंग और नॉट कोडिंग। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनिट में कुछ कोडिंग हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ कांस्टेंट वगैरह डिफाइन किए जा सकते हैं या कुछ और वेरिएबल्स या कुछ भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। दैट डिपेंड्स कि आपने कुछ क्लास लिया है, क्लास का इनिशियलाइजेशन है, या कुछ ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। मगर अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि कोई भी फोल्डर, अब मान लीजिए एक लास्ट में ले रहा हूँ, इसका क्लास खत्म कर दूंगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो जस्ट फॉर टाइम बीइंग व्हाट आई एम डूइंग हियर, आप एक बार ये वाली प्रोसेस थोड़ी सी समराइज कर देंगे क्या वर्बली, मतलब एक और बार बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है, कहीं पर भी बनाइए, either you go to the site package directly and make there only, or you make on the desktop, आपकी आसानी के लिए। so पहले अपनी प्रोसेसिंग डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे मैंने सेंड नाम का एक फोल्डर बनाया, आप सशित नाम का बना सकते हैं फोल्डर। सो फर्स्ट यू मेक द फोल्डर, देन इन पाइथन यू सिंपली ओपन अ फाइल, न्यू फाइल, न्यू करना है, फाइल पे जाके सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू फाइल। आफ्टर दैट कुछ नहीं करना है, बस फाइल और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या दे देना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। कहाँ पर सेव करना है, आपका सशित जो फोल्डर है उसके अंदर, ये पहली फाइल इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, जीरो के भी, ऑब्वियसली मैंने कोई डेटा इसके अंदर रखा ही नहीं है। देन व्हाट यू हैव टू डू, you start writing program, okay, file, new file,
और यहाँ पे आप बहुत सारे मॉड्यूल जितनी भी बनाना चाहो आपकी मर्जी बना लो, and then you save, but that file has to go to the folder Saint or Sashid, whatever the name is there. Okay, so actually father is calling me, so understood this concept? Same way, if you want to make one more folder in the next class, I will take 5-10 minutes more on this topic, and then I will teach you files. Okay, do you have any problem? Yes, Please sir. ask me. Hopefully तो no. बस सर अपन ने ये पूरा फोल्डर बना लिया, तो अब इसे वहाँ लाइब्रेरीज में जाके कॉपी करना है और फिर अपना you काम have हो to गया. copy this folder to the site packages. After that, you have to copy this folder to the site packages. Okay, beta? Okay, sir. Bye. Okay, sir. Take Thank care. you. We'll meet in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye.